Ayush ji, Yes, sir. you can revert me to host because video is not available on my side. Okay. Okay, thank you. Yeah, sure. Namaskar. Uh, uh, very good evening from MIT Meerut and ACIC MIT Meerut Foundation. Actually, we have started this ACIC as we got the permission from Niti Aayog, and with the permission of Niti Aayog and through a competitive stage of selection, we got this ACIC. So, for today's meeting, I would like to just share my views that what this ACIC is, because we have been to the schools and our teams is operating in the schools, and we have seen that there is a lot of uh, I think what I would not use this word that lack of awareness, but it will be like the proper dissemination of information is not there. It's still not there in the ecosystem. So first thing I wanted to just have this kind of awareness sessions with the school principals, the teachers, and all the stakeholders in this environment, so that we can propagate the proper mandate of ACIC, and just to share that what we have to do with this ACIC, what is the mandate of government, what government wants us to do for the society, for the reason. So I think most of our attendees are from this Hindi belt. So I'll be very uh, prominently using Hindi as well. And since we have guests from South and we have guests from Northeast as well, so I think I'll be using this bilingual. And whenever you find something that I'm not able to properly introduce to you, so you can always raise your hand at the end of the session, or there will be a question and answer session at the end where we can interact, and we can solve those doubts together. So let's start with what ACIC is, and just to do, is my screen visible? Can someone please unmute their mic and tell in the chat box if someone can tell? Okay, thank you. So this session is going to be regarding the introduction and what is the brief portfolio of ACIC MIT Meerut Foundation. These are the two entities. First thing is the MIT institution, which is one of the renowned institution of the region, and it is more than 23 years old now. And the second entity is this ACIC MIT Meerut Foundation. This is a separate entity, and it is a separate entity, different Section 8 company. So आज का सेशन हम शुरू करते हैं यहाँ से. Let's have a brief introduction about ACICs and their test areas. So most of the schools, you must be feeling that the students are there and they take part in science exhibitions, and they are more into learning about robotics, IoT, and there is a whole climate of innovation. I mean, since this government has came from the last time itself, there is whole keyword buzzing in the environment of startups, entrepreneurship, innovation, and like these, the similar kind of terms. And it's not like that this government has coined these terms. It is because these are the need of our. क्योंकि कोई सोसाइटी तभी बनती है जबकि हम वहाँ पे लगातार इनोवेशंस करते जाते हैं, सीखते जाते हैं और उनका क्रियान्वयन करते जाते हैं. आप लोग स्कूल से हैं, आप लोग अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को आगे बना रहे हैं, समाज को दे रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि कैसे हमें किस तरीके से इन इनोवेटर्स को,
इनके विचारों को किस तरह से समझना है और उनको कैसे मोल्ड करना है, सही जगह पे कैसे लाना है, सही डायरेक्शन कैसे देनी है। सो कई स्कूल्स हैं, आई हैव मेट विद many of the managements and many of the faculties there, and I have seen there are some labs, good labs, and I will appreciate that apart from providing the lab facilities for the common minimal subject requirements, they are also providing lab space and the faculties and the environment for proper tinkering of the students. So tinkering क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है, tinkering word हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसके बारे में जानना भी जरूरी होता है। टिंकरिंग वो एक क्रिया होती है जिसमें हम बच्चे को कोई सामान दे देते हैं और वो उसको चुपचाप खोलता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई बचपन में देखा खिलौना, तो बच्चे के अंदर कौतूहल होता है। The child is very imaginative, he is very inquisitive, तो वो कीननेस के कारण क्या करेगा, वो खिलौने को खोल के देखना चाहेगा कि इसमें है क्या। और अगर वो उसको खोलता है या एक किड लेवल का बच्चा खोलता है, उसको ठीक से बना लेता है, देन ऑल्सो उसने कोई नई चीज नहीं बनाई, लेकिन उसने क्या किया, उसने सीखा, उसने अब करके और देख के सीखा कि बेसिकली वो खिलौना कैसे बना है, किस मैकेनिज्म पे काम कर रहा है। और वो एक कहीं ना कहीं वो फर्स्ट टाइम अपने आप को जज करता है कि वेदर ही विल बी एबल टू मेक इट और नॉट, है ना। तो ये पहला स्टेप एक होता है एक अनकन्वेंशनल लर्निंग का। लर्निंग की कई मेथोलॉजीज होती हैं, आप लोग इसमें एक्सपर्ट हैं और आप उसको कायदे से एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। लेकिन टिंकरिंग जो एक मेथोलॉजी होती है, ये तरीका भी काफी जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे के अंदर का कौतूहल अगर बाहर आए, और टिंकरिंग वही बच्चा कर सकता है जिसके अंदर इंटरेस्ट हो। अब इंटरेस्ट कैसे आ सकता है, या तो बच्चे के अंदर पहले से इंटरेस्ट हो, अदरवाइज हमने उस इंटरेस्ट को जगाया, है ना। तो हमारा जो ACIC का मेन ट्रस्ट एरियाज है, वो है कि हम किसी तरीके से भी, जो केवल बच्चे तक सीमित नहीं है, टिंकरिंग कोई भी एज में किया जा सकता है। हम लोग आज भी जैसे कुछ करते हैं, इवन आर डे टू डे लाइफ में, कभी कुछ देखा, अच्छा ये तो इतना आसान था, इसे तो हम भी ऐसे बना सकते हैं, वी गेट दिस फीलिंग। सो ये काम करना काफी जरूरी है, जो कि टिंकरिंग होता है। देन डेवलप डिजाइन थिंकिंग कैपेबिलिटीज। आज की डेट में अगर हम बात करें और चीजों को देखें, तो मार्केट, खैर कोविड का टाइम को छोड़ दीजिए, उसके पहले जाइए, तो इफ वी आर विजिटिंग अ मार्केट एंड वी आर सेलेक्टिंग सम प्रोडक्ट, so I think design is one of the important aspect apart from reliability, जो कि आपके माइंड को हिट करती है कहीं ना कहीं, है ना। अगर अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखते हैं, तो आप ये कहेंगे कि नए ब्रांड्स आ रहे हैं, देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स लाइक किया एंड अदर्स, एंड पीपल आर बाइंग देम। व्हाई? क्योंकि बात होती है कि उन्होंने एक डिजाइन के एस्पेक्ट को पसंद किया, और वो रिलायबिलिटी, उस ब्रांड की रिलायबिलिटी इन इंडिया, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं ओवरकम किया अपने इस वाले मेजरमेंट और जजमेंट क्राइटेरिया को। तो बात आती है कि डिजाइन की, डिजाइन थिंकिंग क्यों जरूरी है। तो डिजाइन और डिजाइन थिंकिंग, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। इफ वी आर थिंकिंग ऑफ डिजाइन, तो इट्स नॉट फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव कि हम डिजाइन कैसे कर रहे हैं। डिजाइन थिंकिंग इज अ होल प्रोसेस, कि आप कैसे किसी चीज के बारे में सोचते हैं, और वो सोच केवल वहीं तक सीमित नहीं रहती है कि आप एक कस्टमर की तरह सोच रहे हैं, आप उस सोच को कई स्टेज में सोचते हैं। क्योंकि एक प्रोडक्ट अगर आपके हाथ में आता है, चाहे वो एक छोटी सी पर्स हो जो कि आप अपनी जेब में रखते हैं, तो that has evolved over a long period of time, and there is still a long term to go, क्योंकि पर्स की ऑलमोस्ट डिजाइन वही सिमिलर है, मोबाइल फोन्स की डिजाइन वही सिमिलर है। डिजाइन थिंकिंग ने क्या चेंज किया कि उनकी फंक्शनैलिटीज बढ़ा दी।
आज मोबाइल से आप बैंकिंग की फैसिलिटीज भी उठा रहे हो, अलग अलग ऐप्स आ गए हैं, आप उसी से अलार्म का भी यूज कर रहे हो, आप उसी से अपने बॉडी वाइटल्स भी देख रहे हो, आप मेजर कर रहे हो कि आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए। अगर आपके मोबाइल से हो रहा, कैमरा तो अब एब्सोलीट हो चुका है, तो सारी चीजें आपकी आ गई। इट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेगुलर एंड इवॉल्विंग डिजाइन थिंकिंग बाय द पीपल सिटिंग इन द इंडस्ट्री। उन्होंने डिजाइन थिंकिंग किया, टाइम टाइम देखा कि लोग किस चीज का यूज ज्यादा कर रहे हैं और कैसे कम जगह पे एक बेहतर तरीके से उनको एक प्रोडक्ट में सारी फंक्शनैलिटीज दी जाए। तो मोबाइल इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इवॉल्विंग डिजाइन थिंकिंग। तो डिजाइन थिंकिंग भी काफी जरूरी है, तो इसको डेवलप करना, देन प्रोवाइड रिक्वेस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर। आज को हमारा बच्चा आता है और ही हैज डन हिज डिजाइन थिंकिंग, ही हैज टिंकर्ड, सो आज को उसने एक प्रोटोटाइप बना लिया, देन ही और शी नीड्स सम स्पेस टू डू। अब वो करने के लिए उसको कुछ चाहिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट ऑलवेज द बिल्डिंग, it is it is like providing him or her the right environment in form of a proper setup infrastructure with all the equipments, with a dedicated building and everything, and maybe sometimes the trained staff as well, क्योंकि वो machines ऐसी होंगी जो काफी कीमती होंगी and you would not like people to simply use it and learn over them. okay, तो उसको एक प्रॉपर रिक्वेसाइट इंफ्रास्ट्रक्चर देना। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है कि अगर हमने कोई नई चीज सोची, उसको इवॉल्व किया डिजाइन थिंकिंग से और उसको एक अच्छे फॉर्म में लाए, एक प्रॉपर रिक्वेसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर में जाके उसका थोड़ा सा प्रोडक्शन किया, कुछ प्रोटोटाइप्स बनाए, अब वो कैसे कैसे यूजफुल होगी। या तो उसके दो एस्पेक्ट होंगे। पहली चीज, या तो वो रिसर्च में यूज हो सकती है आपके लिए, इट कुड बी अ गुड रिसर्च एसेट कि वो आगे कोई नया डायमेंशन खोल दे, या किसी तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे स्पेक्ट्रोमेट्री एक टेक्निक आई, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को कोई आप आदमी, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट, एक मशीन में पड़ी हुई है, आप उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी करके केवल आप ये नहीं बता सकते कि दिस इज यूजफुल। आपने क्या किया, उसके एप्लीकेशंस बनाए, देन स्पेक्ट्रोस्कोपी बिकेम यूजफुल। हमने स्टैटिस्टिक्स डेवलप की, हमने मैथमेटिक्स डेवलप की, इंटीग्रेशंस बनाए। दे आर टोटली absurd if we do not use them properly without any application। तो हम क्या करेंगे, उनको किताबों से बाहर निकाल के लाने की कोशिश करेंगे, किसी चीज में एप्लीकेबल बनाएंगे उन थ्योरीज को। तो वो या तो रिसर्च में काम आएंगी, या तो वो किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में आएंगी। प्रोडक्ट के फॉर्म में आएंगी तो उनकी कॉमर्शियल वायबिलिटी हो सकती है। अब उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए वी विल नीड मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज, वी विल नीड ट्रेन्ड मैन पावर एंड वी विल नीड एमएसएमई सपोर्ट, जहाँ पे प्रॉपरली वो मास प्रोडक्शन हो सकता है। सो मीडियम एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जितने भी हमारे होंगे, जैसे मेरठ इज वेरी प्रोमिनेंट एमएसएमई हब। मेरठ में इतनी इंडस्ट्रीज हैं एमएसएमई की, और why we got ACIC and why we are establishing this ACIC in this Meerut region is one of the reason why this MSME hub is there in Meerut. So एक ये हमारे ट्रस्ट एरियाज हुए। Now let's understand what are the stakeholders. ACICs खाली अकेले ऐसे काम नहीं करेंगी। तो ACICs का स्टेक होल्डर जानने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ हम ये जानते हैं कि ये जितने भी अटल इनोवेशन मिशन के अंदर जितने भी एंटिटीज बनी हैं, इनकी हायरार्की क्या है, इनका उद्देश्य क्या है बनाने का अटल इनोवेशन मिशन का। तो अटल इनोवेशन मिशन में सबसे पहले जो बने वो आपके अटल टिंकरिंग लैब्स बनी, और इन्होंने बनाया अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स। सो ATLs कई स्कूलों को मिली हैं, आप में से भी कई स्कूलों के पास ATLs होंगी। और दूसरी चीजें AICs हैं। AICs कुछ एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस को मिले,
और वो टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में दिए गए। तो एटीएल्स का काम क्या था कि बच्चों को एक टिंकरिंग स्पेस देना, मतलब बच्चों को टिंकरिंग स्पेस दिया, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, स्कूल की ट्रेंड फैकल्टीज हैं या आपने ट्रेनर्स हायर किए, तो वहां से वो एटीएल बच्चे के अंदर एक कौतूहल जागा, उसने यूज किया, उसने एटीएल चलाने का काम शुरू हो गया। अब अगर बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको ज़रूरत होती है, अगर उसका काम कमर्शियल वायबिलिटी है कि नहीं है, ये जज करने के कई तरीके होते हैं। वो हम आगे के कुछ सेशंस करेंगे कि कैसे आइडिएशन किए जाते हैं, हाउ टू जज कि कोई बिजनेस आइडिया फिजिबल है कि नहीं है, और कैसे आप अपने इन्वेंशन को जान सकते हैं कि इसकी कमर्शियल वायबिलिटी हो सकती है। सो देयर आर साइंटिफिक टूल्स अवेलेबल, some psychometric analysis is available, so we will be doing future sessions on them also. तो क्या होता है कि उनकी वजह से जब हमको पता लगता है तो हमने अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जहाँ पे इंक्यूबेशन सपोर्ट दिया। इंक्यूबेशन क्या होता है कि हम लोगों ने सुना होगा इंक्यूबेटर्स, नियोनेटल इंक्यूबेटर्स, और इंक्यूबेटर्स हम यूज करते हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में। कभी कभी होता है कि कभी कुछ बच्चे जो होते हैं जो वो ठीक से नरिश्ड नहीं होते हैं, कुछ अलग कंडीशंस होती हैं, तो उनको नियो इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है। वहाँ पे उनको एक सपोर्ट मिलता है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है। तो वो बच्चा किस स्थिति में था, वो आसक्त था, उसको नहीं पता है कि आगे बढ़ना कैसा, उसे नहीं पता न्यूट्रिशन कैसे लेना है। तो हमने एक इन्वायरमेंट बनाया, एक इंक्यूबेशन सपोर्ट दिया, तो वो बेबी ठीक से ग्रो किया, हेल्दी हुआ। तो ये इंक्यूबेशन का मतलब ही क्या है कि आप जब एक काफी नेसेंट स्टेज पे हैं, सो यू विल नीड सम हैंड होल्डिंग टू स्टैंड ऑन योर लेग्स। सो इंक्यूबेशन स्टैंड फॉर दिस ओनली। तो अगर आपका कोई आइडिया आता है, आपने कोई एक स्टार्टअप बनाया, कोई आपके पीओसी स्ट्रांग है, आपने देखा कि आपने एक टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल पे बना दिया। अच्छा, ये बात जो इनोवेशंस की होती है, कई बार मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता लगा है कि लोग समझते हैं कि इनोवेशंस केवल साइंस स्ट्रीम वाले ही कर सकते हैं। ऐसा आपको भी लगता होगा कि कोई वैज्ञानिक खोज करने के लिए आपको साइंस का होना चाहिए या वैज्ञानिक ही इनोवेशन करते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे तरीके आए मार्केट में जिन्हें आप अभी भी यूज कर रहे होंगे, और वो टोटली अलग तरीके से बने हुए हैं, साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया, लेकिन जब आप ऊपर के लेवल पे चढ़ते जाते हैं तो अभी आपकी what knowledge we have acquired, what degrees we have acquired, they were different, but at the upper strata they are all same। अगर आप एक एग्जॉस्टिव सिस्टम की बात नहीं करेंगे, क्यूमुलेटिव सिस्टम की बात नहीं करेंगे, तो आज कोई भी इन्वेंशन कारगर नहीं होगा। कभी भी आप बात करते हैं तो इंटरडिसिप्लिनरी की बात अब आती है। जैसे कि आप पेटीएम यूज कर रहे हैं, आप ओला यूज कर रहे हैं, उबर यूज कर रहे हैं, दीज आर ऑल बिजनेस मॉडल्स। गाड़ियां पहले भी थी, मोबाइल ऐप आपके पास पहले भी था, आप एसएमएस से या उससे किसी को बुला सकते थे, आप ड्राइवर को पहले भी कॉल करते थे, है ना। लेकिन एक बिजनेस मॉडल बनाना, बिना गाड़ियां खरीदे हुए, बिना आप पार्किंग की व्यवस्था किए हुए, बिना ड्राइवर हायर किए हुए, एक ये बिजनेस आइडिया है, एंड दिस इज इनोवेटिव आइडिया, है ना। इसी तरह से बैंकिंग का सिस्टम जिस तरीके से इवॉल्व किया, तो ये सारे कमर्शियल हुए। अब अगर बात करते हैं कि हम आर्ट्स में क्या इनोवेशन कर सकते हैं, एजुकेशन में इनोवेशन कर सकते हैं, ये कोविड का टाइम है। कई गूगल क्लासरूम पे सबने क्लास ली, कई फैकल्टीज ऐसी होंगी उन्होंने अपने अपने नए नए तरीके निकाले कि बच्चे नकल ना कर पाए। दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट और मोस्ट एक्साइटिंग प्रॉब्लम आई हैव सीन अमंग्स द टीचर्स, कि हम कैसे बच्चों को अप्रोच करें, वो सेशंस को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, उसे इंश्योर करना, और वो नकल नहीं कर पा रहे हैं, असाइनमेंट्स ठीक से दे रहे हैं, इसको भी गेज करना। तो ये सारे इनोवेशंस पॉसिबल हुए आपके कॉमन सेंस से, है ना। और ये सारा आया एक्सपीरियंस से। सो इनोवेशन इज नॉट लिमिटेड ओनली टू साइंस स्ट्रीम। तो हम यहाँ थे कि AICs इंक्यूबेशन देती हैं, तो ATLs बने, AICs बनी,
AICs बने बड़े शहरों में, ATLs दिए गए स्कूल्स को ऑल ओवर कंट्री। अब इनके बीच में दिक्कत क्या आई कि एक बच्चा अगर क्लास 12th में रहता है और उसने कोई इनोवेटिव आइडिया किया या कुछ ऐसा किया, तो वो तो जा सकता है इंक्यूबेशन के लिए क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, एक चैनल से ही और शी कैन गो। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति नॉर्मल है, गांव का रहने वाला या किसी रूरल बैकग्राउंड पे स्कूल है, तो वो इन फैसिलिटीज को कैसे आगे बढ़ाएगा? तो अटल इनोवेशन मिशन के अंडर इन्होंने क्रिएट किया अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। 2019 में इनका एक विचार आया अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का, अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र स्थापित करने के। तो इन्होंने फर्स्ट कॉल निकाली 24 ACICs की। सो वी आर वन ऑफ देम एंड वी आर सेकंड इन यूपी आउट ऑफ 2 ग्रांटेड इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसको समझते हैं कि अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कैसे इस AIC और आपके ATLs के बीच में एक कड़ी की तरह कैसे काम कर रहा है, इन दोनों को कैसे जोड़ रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जोड़ के इन दोनों की सुविधाओं को दिला रहा है। तो सबसे पहले आती है हमारे पास कि एक डिजाइन लेड इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने की। डिजाइन लेड इनोवेशन सिस्टम क्यों जरूरी होता है? आज की डेट में अगर हम ये देखते हैं कि एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं पर्स का। तो अगर आपको ये कहें कि आपको एक पर्स बनानी है, एक हम लोग एक सेशन करेंगे डिजाइन थिंकिंग का भी, वो काफी बड़ा होगा, मेरे ख्याल से दिन भर का होगा, तो आप लोग को थोड़ा सा उसमें टाइम देना पड़ेगा। वो वर्कशॉप होगी एंड देयर विल बी पीपल फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद एंड पीपल फ्रॉम IIM लखनऊ एज वेल। सो वो वर्कशॉप होगी और आप ये देखेंगे कि डिजाइन के बारे में सोचना और इवॉल्व करना, सोच को इवॉल्व करना कैसे जरूरी होता है और आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि एक पर्स आपको डिजाइन करनी है, एक मेल की पर्स डिजाइन करनी, जेंट्स पर्स आपको बनानी है, लेडीज की तो अलग अलग शेप में आती है, तो एक वही एक रेक्टेंगुलर शेप और जो एक फोल्डेबल होता है, आपके दिमाग में यही आएगा। तो किसी ने उसको सोचा होगा और ये सोच के किया होगा कि वो बटुआ आपके पर्स में, आपके जेब में किसी तरीके से समा जाए। सो ये कंसेप्ट आया एक डिजाइन लेड इनोवेशन से। आपने सोचा कि इसको जो कोई यूज करेगा तो ही शुड बी कैपेबल ऑफ पुटिंग दिस पर्स इनटू हिज पॉकेट इजीली सो दैट इट कुड बी एक्सेसिबल, है ना? तो वो चीज डिजाइन से आई। इसी तरह अगर पेन की बात होती है तो पेन में एक ऊपर से लगा होता है, एक क्लिप लगी होती है। वो क्लिप जब पेन सबसे पहले बनी होगी तो नहीं लगी होगी। उस क्लिप का क्या काम हुआ कि सो दैट इट कुड बी अटैच्ड इजीली टू योर अटायर, है ना? तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिजाइन लेड इनोवेशंस। सो हमें क्या करना है, वी आर फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग दिस डिजाइन लेड इनोवेशन सिस्टम, कि हमारा बच्चा हमारे पास आके ये ना बोले कि हमने आर्डिनो पे एक रोबोट बना दिया, ये एक लाइन को फॉलो करता है, बस ऑब्स्टेकल आती है तो घूम जाता है ना? जैसे नॉर्मल प्रोजेक्ट्स होते हैं कि हमने कहा कि एक उसने क्या किया, आर्डिनो पे बोर्ड लाया, प्रोग्राम गिटहब से उठाया, उसको बर्न कर दिया, अब उसने दिखाया ये रोबोट ऐसे चल रहा है। लेकिन अगर उसने कोई एप्लीकेशन नहीं सोची, अगर उसने एक प्रॉपर प्रॉब्लम को नहीं सोचा और उसके हिसाब से अपने रोबोट का डिजाइन नहीं किया, तो वो कभी भी यूज नहीं होगा, वो आपकी लैब में केवल धूल खाएगा। आप कभी भी when there will be some visit, you will be proud to show it as a model, लेकिन वो मॉडल उसी तरीके से 10-15 साल तक पड़ा रहेगा, एक दिन खुद ही खराब हो जाएगा, है ना? तो हम जो इनोवेशन करेंगे अगर वो डिजाइन लेड इनोवेशन होगा, सो इट विल बी बेनिफिशियल टू द सोसाइटी, टू द पीपल। और ये करने के लिए सबसे जरूरी है कि अगर सारे स्कूल्स अपने यहाँ हर सेशन में 10 ऐसी प्रॉब्लम्स को निकालें जो कि उन्हें लगता है कि अगर बच्चे इसमें इंटरेस्ट लें एज अ इंटर्न और अगर उसको सॉल्व करें उनकी लैब की दी हुई चीजों के हिसाब से, तो उनका सोल्यूशन निकल सकता है। तो यू कैन इंसेंटिवाइज इट टू,
जैसे मान लीजिए आपको ग्रीनरी के लिए बात करनी है, या कोई आपको देखना है कि आपके यहाँ दीवार काफी लंबी है और उस पे पेंट कराना है, तो पेंटिंग की काफी कॉस्ट आती है 5 साल पे। तो आपको क्या करना है, कोई बच्चा रोबोट अगर बना रहा है, तो क्यों ना कोई एक ग्रुप, देयर शुड बी सम ग्रुप, वो कलेक्टिव आ जाए, वो क्या करे, वो एक पेंट को ऑटोमेट कर दे, एक पेंट मशीन कर दे उसी रोबोट में, कि वो रोबोट चले और आपकी दीवार को भी पेंट कर दे। तो दीज आर डिजाइन लेड इनोवेशंस दे विल बी डूइंग, and it will be beneficial to you, you can commercially utilize it too. तो सबसे पहले बात आती है उसमें, जो सबसे पहला पिलर आता है, दैट इज नोइंग एंड फाइंडिंग। नोइंग एंड फाइंडिंग क्यों बताया, क्योंकि सबसे पहले आप जब एनलिस्ट करोगे कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, then only you will be able to know that these are actually the problems, and actually these are our resources through which we can get them through, and these are the resources which can be utilized, and these are the resources whom we can enhance, है ना? So there will be reflexivity, और कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास कोई चीज नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं, अगर कॉलेज में आप रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, तो मैंने तो अक्सर ये देखा कि हॉस्टल्स में कभी किसी को किसी चीज की कमी नहीं होती है। आज पता चला टूथपेस्ट खत्म हो गया, आज शैम्पू खत्म हो गया, तो कभी कोई टेंशन नहीं रहता। जैसे घरों में रहता है ना कि अच्छा ये दाल खत्म हो गई, आज ये लानी है। हॉस्टल में क्या हुआ, पड़ोसी के पास चले आए, ले आए। तो वो क्यों होता है, वी मेक फ्रेंड्स, वी मेक कनेक्शंस। और जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते हैं, बड़े हो जाते हैं, प्रोफेशनल हो जाते हैं, तो हमारे अंदर एक हेसिटेशन डेवलप करती जाती है। अगर वो पहले रहती तो और ज्यादा डेवलप कर जाती है। वी हेसिटेट टू कनेक्ट विद पीपल। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पड़ोस से आराम से मिल सकती हैं, बट वी हेसिटेट, वी हैव डिफरेंट थिंग्स इन आवर माइंड। So for that we must have this connection building in our ecosystem. Then tinkering, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो चीजें यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, वो कैसे बनी, उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है। देन आपने जो अभी तक रिसर्च एक्वायर किया है, या पहले से एक्वायर्ड जो रिसर्च है, वो कैसे आपको हेल्प कर सकता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। देन वेरी इंपॉर्टेंट पिलर इज सेंसिटिविटी। अगर हम जैसे आजकल अपना इनोवेशन का जो पूरा बना रखा है, विकास का बना रखा है ढांचा पिछले कई सालों से, और वी आर वॉचिंग कि इन्वायरमेंट इज टेकिंग द होल स्ट्राइड ओवर इट। सो हमारे साथ क्या दिक्कत हो रही है, वी आर नॉट मूविंग इनटू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी आर थिंकिंग अबाउट जस्ट वन डायमेंशन, एंड फॉर दैट we'll have to be very sensitive। अगर हमें किसी के बारे में सोचना है तो we'll have to be very empathetic and we'll have to think about them also। क्योंकि एक समाज में अगर आपको ये लगता है कि साथ वाला, बगल वाला कमजोर है और हम स्ट्रांग होते जाएं तो हम आगे बढ़ेंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। we will need to do hand holding to the people who are deprived, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सड़क पे चलते हैं, इट्स वेरी कॉमन एग्जांपल, तो वेरी पीपल आर, सम पीपल आर वेरी नेग्लिजेंट। आप वो कहोगे कि यार वो गरीब है, ऐसे ही है, इन लोग की तो आदत ही होती है ऐसा करने की, है ना। सो एज अ गुड सिटीजन इट्स आवर ड्यूटी कि उनको वो समझाना, वो सुविधाएं देना कि वो उस लेवल पे आपके बराबर आके भी उन चीजों के बारे में सोच सके। वो तभी सोचेंगे जब आप सेंसिटिव होगे। आप सड़क पे चलोगे और आप गाड़ी में चल रहे हो और आप पानी में गाड़ी तेजी से निकालोगे, दूसरे के ऊपर पानी मारते हो क्योंकि आपको तेजी से चलना है ना। So this is not sensitivity, you are not feeling for the people who are walking on the road or who are standing। So we'll have to be very sensitive in creating our goal, in attaining them। हमें सबसे पहले अपना बिहेवियर देखना है, पर्सपेक्टिव देखना है, नेचर के बारे में सोचना है, ये भी देखना है कि जो इन्वेंशन हम करने जा रहे हैं, जो इनोवेशन लाना चाह रहे हैं, व्हाट मॉडल वी वांट टू अडॉप्ट, वेदर इट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल और नॉट। अगर हम ये बात करें कि आज हम कोई बैले बनाते हैं और हम चाहें कि वो रूरल रीजन में हमें उसको बेचना है,
सो वी कांट डू, हमें नॉर्मल चप्पलें बनानी पड़ेंगी, है ना। तो हमें एक सेंसिटिव होना पड़ेगा, लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि कैसे सोच रहे हैं, उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट पिलर इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये दोनों काम जो मैंने आपको पहले बताया, ये करने के लिए आपको एक्सपीरियंस भी काफी जरूरी होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस से आपको ये पता लगता है कि सामने वाला किस तरीके से सोचता है, उसे चाहिए क्या, एंड हाउ यू कैन डिलीवर दोज थिंग्स इन द बेस्ट मैनर, है ना। तो एक्सपीरियंस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जितने वॉट एवर डेवलपमेंट्स वी आर डूइंग, वी आर टोटली कनेक्टेड, वी आर टोटली कंसर्न्ड अबाउट द डेवलपमेंट एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी, द एनवायरनमेंट। अभी रिसेंटली आपने खबर भी पढ़ी होगी, मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है, उसमें समहाउ टन्स में डायमंड्स हैं, and there are lakhs of hectare of that land that is forest area, and the government has planned to mine that area for diamonds, है ना। So there are such news coming up, and there are some better ways that how to mine it, and without disturbing the forest cover. So we'll need to be very innovative. हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, ये नहीं सोचना है कि कैसे वो हम केवल करते जाएं और प्रकृति का क्षरण होता जाए। और सस्टेनेबिलिटी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी इससे भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आज हम ACIC जैसा एक संस्था चला रहे हैं या एक स्कूल डेवलप कर रहे हैं और वी आर फंडेड बाय समवन, तो कितने साल के बाद वी आर सेल्फ सस्टेनेबल, हम अपने पैरों पे कब खड़े हो जाएंगे कि वॉट एवर वी आर डूइंग, वी आर जनरेटिंग इनफ फाइनेंसेस, वी आर जनरेटिंग इनफ रिसोर्सेज टू सस्टेन अस। तो सस्टेनेबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई विभाग खोल दिया और उसको केवल तनख्वाह देते जा रहा है और रिटर्न में कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो आज के जमाने में आपको सस्टेनेबल होना पड़ेगा, आपको उन फंड्स को आगे के सालों के लिए खुद डेवलप करना पड़ेगा। वो तभी आएगा जब आप इनोवेट करेंगे, कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। तो अगर देखा जाए इस तरह से, तो यूनाइटेड नेशंस ने अपने 17 सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं, SDGs दिए हैं। वो अलग अलग हैं आपके, वो रिलेटेड हैं ह्यूमन लाइफ को लेके, आपके फॉरेस्ट कवर को लेके, आपके फूड को लेके भी हैं, एनिमल्स को लेके भी हैं, और आपके पोल्यूशन को लेके, आपके एफ्लुएंट्स को लेके भी हैं। तो हमारा जो ACIC का मैंडेट है, वो सबसे जरूरी वो ये कहता है कि हर लेवल पे नीचे से बायोस्फीयर से लेके, बायोस्फीयर क्या हुआ, बायोस्फीयर इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ट्रीज हैं, जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, उस बायोस्फीयर को देखना, वहां पे SDGs को कंजर्व करना, उनको देख के ही डेवलपमेंट करना। देन सोसाइटी लेवल पे भी SDGs को अटेन करना, जो सोसाइटी लेवल पे दे रखी हैं। जो हमारे बायोस्फीयर लेवल पे SDGs होंगे, वो क्या होंगे, आपके पोल्यूशन से रिलेटेड होंगे, एक्वा कल्चर को बचाने के लिए होंगे, फिर आपकी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए होंगे। इसके अलावा वो आपके कार्बन एमिशंस को बचाने के लिए, कवर करने के लिए होंगे। सोसाइटी लेवल पे इंडस्ट्री, एफ्लुएंट्स और ये सारे SDGs आएंगे। देन इकोनॉमी लेवल पे जब हम आएंगे, तो इकोनॉमी लेवल पे बात आती है कि आप सस्टेनेबल कैसे बनते हैं। तो वो उन SDGs को पाना और एक कॉमन कलेक्टिव गोल को बनाना। सो फॉर द ACICs, it is our tagline to become the district nodal body to drive SDG transformations through innovation and entrepreneurship. केवल इनोवेशन से हम आगे नहीं बढ़ सकते एज अ सोसाइटी, क्योंकि इनोवेशन से केवल आविष्कार होंगे, उसे एक मूर्त रूप में लाना, टू मैनिफेस्ट दोज इनोवेशन इनटू प्रोडक्ट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, and to generate value, to generate economy, some economic value from those, that is entrepreneurship. तो वो उसके बिना
हम ये नहीं पा सकते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट नोडल बॉडी बनना टू ड्राइव द एसडीजी ट्रांसफॉर्मेशन इन द डिस्ट्रिक्ट and within the commissionery through innovation and entrepreneurship. This is the ACIC's mandate और गवर्नमेंट ने सोच रखा है 96 ACICs बनाने का अगले 3 सालों में। So let's see what ACIC MIT Meerut Foundation is all about. So we are among 24 ACICs selected all over the country, and you can visit the AIM site, and under the programs of AIM you can visit the tab of what are the different programs. You can see the ACICs and you can get the list of selected 24 ACICs, and even rejected ones are there. So many reputed IITs and NITs also were considered in that application. So we got the chance to establish this ACIC at MIT Meerut campus, and we are amongst the 10 operational ACICs. Out of those 24, 10 are operational, other are 14 are under the compliance stage. And these are the 2 ACICs conferred in the state of Uttar Pradesh. एक ईस्ट यूपी में मिला NGO को, and we are the second one. So हम लोगों ने जो एक ACIC बनाया ये, तो हमने इसको रजिस्टर कराया नॉट फॉर प्रॉफिट, एक ACIC MIT मेरठ फाउंडेशन सेक्शन 8 कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, क्योंकि ACICs को ड्राइव करने के लिए हमको एक व्हीकल बनाना था जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती. So we are a section 8 company and we are not going to indulge in any profit making. तो हमारी जितनी भी सर्विसेज होंगी, जितने भी हम कोलैबोरेशंस करेंगे, they will be non financial ones. This is to mention. हम कोई किसी भी अपनी सर्विसेज के लिए we are not going to charge you anything. So MSME हब है हमारा मेरठ. So यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटीज हैं. इवन स्कूल के बच्चे जो छोटे छोटे इन्वेंशंस करते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज की अपनी छोटी ज़रूरतें होती हैं. जैसे कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा मेरठ में क्या, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट. और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इवॉल्विंग है, उसमें मशीन्स पुरानी यूज़ हो रही हैं. कल को बात होती है कि एक मशीन फुटबॉल ब्लैडर्स बना रही है, वो एक बार में 500 ब्लैडर बनाती है और वो आधे घंटे में बनाती है. तो देयर विल बी सम नीड कि अगर कोई ऐसा पंपिंग मैकेनिज्म आ जाए कि वो प्रोडक्शन को दुगना कर दे और आपके पूरे टाइम को आधा कर दे. तो कभी कभी आप कभी मटेरियल के रिसर्च में जाओगे तो देयर विल बी सम इनोवेशंस कि ब्लैडर रबड़ में सल्फर चेंज कर दिया, या कोई ऐसा हमने फाइबर मिला दिया जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ अलग हो गई, ब्लैडर जैसी प्रॉपर्टी है वो और स्ट्रेंथन हो गया और छोटे ब्लैडर से ही ज़्यादा काम होने लगा. तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स कि इनोवेशन कहाँ कहाँ हो सकते हैं. इंडस्ट्रीज डजंट मीन कि वो उतनी बड़ी फैक्ट्री है तो वहाँ पे आपको कोई इनोवेशन करने के लिए कोई बड़ा साइंटिस्ट ही आएगा. देयर आर वेरी स्मॉल थिंग्स नीडेड. आप देखते हो कि सोइंग मशीन की बात आती है. आप कभी एग्रीकल्चर में जाता है किसान, जा रहा है तो वो क्या हुआ, उसने अपने पीठ पे 15 लीटर का एक बैग रखा हुआ है वो करने के लिए. तो बच्चे आजकल इस पे भी विचार कर रहे हैं, हम लोग के कैंपस पे भी कर रहे हैं कि ड्रोन के थ्रू वो कर लें. और ड्रोन में भी केवल ड्रोन से वी आर नॉट टेकिंग दैट होल bunch of fertilizer for spraying. They are also thinking of putting some pipe and using some drum. तो छोटे ड्रोन से भी केवल एक स्प्रेयर की तरह काम हो जाए फील्ड के पास से, तो वो जो बड़ा वाला ड्रोन होता है उसकी जरूरत ना पड़े. तो दीज आर द छोटे छोटे इनोवेशंस की जरूरत होती है. आपकी लाइफ को जो चीज आसान बनाए, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, वो भी कॉमर्शलाइज आइडिया हो सकता है और वो बच्चा कर सकता है. So we are located in NCR and we are looking forward to collaborate in the region of West UP and Uttarakhand. So we are lucky to get support from host institution of MIT, and our key trust areas are developing the healthcare devices and doing innovation in healthcare. इंटरनेट ऑफ थिंग्स की काफ़ी आजकल बातें बढ़ गई हैं. जैसे कई देयर आर डिफरेंट टर्म्स यूज दीज डेज, जैसे मशीन लर्निंग आया, डीप लर्निंग आया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आया.
तो ये तो नया माना जा सकता है, लेकिन मशीन लर्निंग इज नॉट द थिंग विच इज डेवलप्ड इन 21st सेंचुरी. इट इज बीइंग यूज्ड फ्रॉम 1950s, जब प्रोग्रामर्स अपने हिसाब से प्रोग्राम्स को मोल्ड करते थे एंड दे मेक देयर प्रोग्राम्स स्मार्ट. सो ये टर्म्स क्वाइन होते हैं और इनकी ज़रूरत के साथ साथ चीज़ें बदलती जाती हैं. जैसे कि हमने बात किया कि हम केवल एक विषय को लेके इनोवेशन नहीं कर सकते हैं. ऊपर वाले स्ट्रेटा पे जाके हमको इंटरडिसिप्लिनरी पे ही आना है. हमको फिलॉसफी, साइंस, मैथमेटिक्स, कॉमर्स सब चीज़ को मर्ज करके, सारे नॉलेज को मर्ज करके, और एक कॉमन एक कायदे के आदमी को जो डिज़ाइन भी सोचता हो कि उस प्रोडक्ट को किस फॉर्म में दिया जाए कि लोग उसको यूज करें, और एक मार्केटिंग वाले बंदे को लेके तभी हम काम चला सकते हैं, है ना. तो रोबोटिक्स, एग्रीटेक, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इसके अलावा ई सोसाइटी, ई गवर्नेंस एंड ई कॉमर्स, दीज आर आर ट्रस्ट एरियाज. सो इन सबको करने के लिए व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज टू क्रिएट एन इकोसिस्टम. इस इकोसिस्टम में जो हमारे स्टेक होल्डर्स होंगे, these are our key partners: schools, ITIs, colleges, higher education institutions, MSME, cottage industries, communities and individual innovators. तो हमारे इतने स्टेक होल्डर्स की जरूरत क्या है, इनके रोल्स क्या हैं. देखिए, स्कूल्स और ये एक इंस्टीट्यूशंस हैं. if we are talking about innovators, so I'm telling you my experience since past 2 years. Even in COVID times, it was very hard and our mobility is restricted. So whenever we went to schools, we got the list of few innovating students. So एक अगर institutionalized ecosystem होता है तो वहां से चीजों को ग्रैब करना, सोक करना आसान होता है. सो स्कूल्स, ITIs, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, दीज आर द फर्स्ट प्रायोरिटीज और मोस्ट प्रोबेबल प्लेसेस जहां पे हमें इनोवेटर्स मिल सकते हैं. और इंडिविजुअल कम्युनिटीज में क्या होगा कि हमें ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों के पास जाना पड़ता है, जहां से हम देखेंगे उस गांव में करने वाले होते हैं, क्योंकि इनोवेशन इज नॉट लिमिटेड टू पीपल हु आर एजुकेटेड. it is people who are thriving, who are empathetic and who are sensitive and who are adaptive and who want to learn and do the things. तो केवल हम ये नहीं कह सकते कि एक शिक्षित व्यक्ति ही इनोवेशन कर सकता है या एक विज्ञान का ही छात्र इनोवेशन कर सकता है. तो इन सारे स्टेक होल्डर्स को जोड़ने के लिए what we are planning to do is organizing the startup festivals. Startup festivals तब organize होंगे जब हम देखेंगे कि हमारे इकोसिस्टम में कुछ स्टार्टअप्स बच्चों के आ रहे हैं या कम्युनिटीज से कुछ इंडिविजुअल्स के आ रहे हैं. देन देयर विल बी एनुअल स्टार्टअप थेरेपी सेशंस. ऐसा नहीं होता है कि कोई किसी बच्चे ने इनोवेट किया एंड उसके बाद उसने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया तो दैट आइडिया विल सिंपली ब्लास्ट. सो हमें क्या करना पड़ता है, उसे इंक्यूबेट करना पड़ता है इंक्यूबेशन में. और इंक्यूबेशन में भी जरूरी नहीं है 1% आइडियाज ही आपके कायदे से 1 या 2% ही जाके एक प्रॉपर लेवल पे जा पाते हैं. तो उनको समय समय पे थेरेपी देना कि कहाँ पे चीजें गलत हो रही हैं, क्या वो सही कर रहे हैं, अच्छा सही कर रहे हैं तो और सही कैसे हो सकता है. तो दीज थेरेपी सेशंस आर इम्पोर्टेंट. सो एनुअल थेरेपी सेशंस हम ऑर्गेनाइज करेंगे स्टार्टअप्स के लिए. देन प्रोटोटाइप डेमो फेयर्स, जैसे कि साइंस एग्जीबिशंस होते हैं. अभी मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी किसी स्कूल से मुजफ्फरनगर से कि दे वांट टू ऑर्गेनाइज सम दिस साइंस एग्जीबिशन इवेंट्स इन कोलैबोरेशन विद ACICs. सो एक अच्छे लेवल पे जिससे वो चीज़ें हो जाए, उनके बच्चों को भी आगे से एक विजिबिलिटी मिले एंड वी कैन टेक द इनोवेशन थ्रू टू द नीति आयोग. तो वो डेमो फेयर्स उनको कैसे मोल्ड करना है, देयर शुड नॉट बी द रूटीन. यहाँ पे भी हमको इनोवेशन करना पड़ेगा. देयर शुड नॉट बी रेगुलर साइंस एग्जीबिशन फेयर कि एक थर्माकोल पे बच्चे ने कुछ लिख दिया या एक बना बनाया प्रोटोटाइप ला दिया, हम 4-5 लोग जज बन के चले गए, अच्छा इसने अच्छा किया, खत्म हो गई बात. वो लाके वो मॉडल उसके बाद हमारे
स्कूल में या किसी पर्टिकुलर जिसने भी कर रखा उसके पास रखा हुआ वो मॉडल यूज नहीं हो रहा है. So we'll have to evolve in this. We'll have to innovate in our approach here. So prototype demo fairs जरूरी हैं. Then awareness sessions, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं ये awareness session, तो there will be different awareness session. आगे कैसे डिजाइन थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, वर्कशॉप्स होंगी हमारी. फिर बच्चा आपके पास आता है या बच्चे को कोई आइडिया आता है तो आइडिएशन कैसे करते हैं, आइडिएशन होने के बाद उसको आगे कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं. There are some scientific tools available. वो सेशन एक्सपर्ट्स कराएंगे. देन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स. जब हम ये सारे काम करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो एक दो रिसोर्सेज हैं उन्हीं से हमारा काम चल जाए. आज को पता चला 5 बच्चे मोटिवेट होकर कर रहे हैं, कल को 50 हो गए, तो हमें रिसोर्सेज बढ़ाने हैं. तो व्हाट वी विल नीड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स. हमें चाहिए कि आज एक फैकल्टी अगर लीड ले रहा है तो और उसके साथ 2 स्टाफ लगा हुआ है, तो जितने भी ऐसे इंटरेस्ट लेने वाले लोग हों उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो. So that we will also conduct free of cost. Creative idea pitching, canvassing business ideas. Business ideas को canvas करना ये भी एक अलग टेक्निक है. There will be a separate session I'll take into next session and it will be very interesting. So writing community challenge brief. आपको वही जो मैंने बताया कि समस्या को पहले आप जब समझेंगे तो डिजाइन लेड इनोवेशंस होंगे. सो कम्युनिटीज में अगर बच्चा जाएगा, जैसे प्रॉपर हमारे कई स्कूल्स हैं जो रूरल एरियाज में है, बच्चे रूरल एरियाज में है, वो रोज देखते हैं कि कुछ जगह पे कुछ ऐसी चीजें जिन्हें छोटी सी अगर ध्यान दिया जाए तो उससे को सॉल्व किया जा सकता है. तो उसी तरह से राइटिंग कम्युनिटी चैलेंज ब्रीफ, कम्युनिटीज के ऊपर क्या समस्याएं आ रही हैं उनको लिखना और उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है टेक्नोलॉजीज से. सो वी कैन ऑर्गेनाइज सम फेयर्स वेयर some optimum technology can solve those issues. So events like next big innovative idea contest, जहाँ पे ACICs हमारी जो है ये देखेंगे कि ये जो next big idea innovative ideas events होंगे ये rewarding भी होंगे. We will be rewarding the people, the innovators as well. So special annual events will be only for women entrepreneurs and entrepreneurs from economically weaker sections of the region. These are the thrust areas. So we'll be hosting and we have a good team to look into this. So these are the services which is available, the facilities available with the ACIC Meerut, and we are further strengthening it. So हमारे पास 37 industrial collaborations हैं and in the host institution, and right from Bosch, Festo, AWS, हमारे पास वो सारे labs available हैं, robotics की भी. तो उसके अलावा we are again developing makers space and fabrication lab. तो जो 3D printers आपके अटल टिंकरिंग लैब्स में होते हैं उससे बेटर क्वालिटी के 3D printers जो कि और अच्छे तरीके से और फाइननेस से काम कर सकते हैं और रिफाइंड वे में और ज़्यादा रेजोल्यूशन से काम कर सकते हैं, कम समय में प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं और बड़े मॉडल्स बना सकते हैं. सो दोज ऑल फैसिलिटीज, CNC मशीन, लेजर कटिंग मशीन्स, दे आर ऑल अवेलेबल इन द फैब्रिकेशन लैब. मेकर्स स्पेस एक जगह होगी जहाँ पे बच्चा आके बैठेगा और वो इनोवेटर्स वहाँ पे अपने वो सारे काम करेंगे. जब उनको अगर सोल्डरिंग करनी है, सोल्डरिंग स्टेशन की जरूरत है, कुछ छोटी मोटी आईसीज चाहिए या कंपोनेंट चाहिए, या अगर वो कोई मॉडल बना रहे हैं, एक कारपेंटर टाइप का मॉडल कोई यूज कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट वो लाके वहाँ पे अपने रूटीन वो टिंकरिंग कर सकते हैं. देन नर्चरिंग एंड मेंटरिंग टू ईच इनोवेटर. तो मेंटरिंग इज अ वेरी कलेक्टिव टर्म. अगर हम कहें कि मेंटरिंग, तो मेंटरिंग एक समग्र शब्द है जिसमें कि कई चीजें आ जाती हैं. टीचिंग की अगर हम बात करते हैं तो टीचर एक चीजें सिखाता है, शिक्षित करता है. मेंटर का काम क्या होता है कि वो एक अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखता है. तो मेंटर केवल टेक्निकल एस्पेक्ट को नहीं देखता है, वो बिजनेस एस्पेक्ट को भी देख सकता है. वो ये भी देख सकता है कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट है, उस तरीके से वो मेंटर करेगा. तो मेंटर्स हमारे पास अलग अलग फील्ड्स के हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कई सिविल सर्वेंट्स हैं, और हम लोग अपने मेंटर पैनल को भी और स्ट्रेंथन कर रहे हैं.
and we have tied up with good institution, the IITs and NITs, for good mentors. Then रेगुलर ट्रेनिंग टू द स्टेक होल्डर्स. कभी कभी ऐसा होता है कि ATLs में हम लोग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम व्हाट वी हैव फाउंड कि जहाँ पे ATLs ऑपरेशनल है वहाँ पे भी वो चल नहीं पा रही हैं, क्योंकि कई जगह पे रिसोर्सेज की कमी है, ट्रेनर्स की कमी है, और वो ट्रेनिंग प्रॉपर टाइम से नहीं हो पाती है. वो सेशंस अपने हिसाब से सहूलियत से दिए जाते हैं. तो अगर हम अपने स्टाफ को उस तरीके से ट्रेन कर लें, तो उनको इंसेंटिवाइज कर दें उस तरीके से, वो जो फंड हमारे पास है, तो हम उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं और बच्चे को भी इंगेज कर सकते हैं. तो इसके लिए व्हाट वी हैव डन, हम ACIC MIT मेरठ फाउंडेशन ने एक इनिशिएटिव लिया है. हमने 3 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अपने तैयार किए हैं, जो कि पहला प्रोग्रामिंग पे होगा, दूसरा ट्रेनिंग मॉड्यूल हमारा मशीन लर्निंग डेटा साइंस पे हो रहा है, और तीसरा जो है वो है रोबोटिक्स पे जा रहा है, क्योंकि रोबोटिक्स पे अकेले ATLs काम नहीं कर सकती हैं अगर रोबोटिक्स को IoT के साथ नहीं जोड़ा गया, एक वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन नहीं आए, तो वो अधूरा रह जाता है. तो हम लोग सबसे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करना, देन डेटा साइंस मशीन लर्निंग को कैसे पाइथन से करेंगे, उसके बाद कैसे बच्चा रोबोटिक्स करेगा, ऐसे रेगुलर सेशंस कराएंगे. दे विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. सो इसके लिए हम आप लोग को कांटेक्ट भी करेंगे, so that we get a proper schedule from your side, कि एक ग्रुप ऑफ स्कूल्स मिल जाए एंड दे गिव अस प्रॉपर स्लॉट कि अगर उनके बच्चे ट्रेन होना चाहते हैं, उनकी फैकल्टीज ट्रेन होना चाहती हैं, तो हम किस समय वो ट्रेनिंग्स को डिलीवर कर सकते हैं उनके लिए. और एनी टाइम यू कैन विजिट आवर कैंपस टू यूज द फैसिलिटीज. So in total, we can say that it will be a complete hand-holding to the innovators for pitching and participation in different innovation-based events. तो जितने भी हमारे नीति आयोग के या अलग स्टेट नेशनल लेवल पे इवेंट्स होते हैं, so we'll be having a whole list of events so that all any innovator who are coming through our ecosystem, they get a proper chance to get featured. तो ये बच्चे अगर फीचर होंगे तो उससे आप जिस स्कूल से या जिस एफिलिएशन से वो जुड़े होंगे, दे विल आल्सो गेट द बेनिफिट. क्योंकि आपके जितने रैंकिंग स्कीम्स आ रही हैं, जैसे अभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की हैं, उसमें एरिया रैंकिंग आ गई है, अटल रैंकिंग बेस्ड ऑन इनोवेशंस. सो उसमें भी ये सारी चीजें काउंट होती हैं. So there will be regular trainings to the single point of contacts established at different stakeholder facilities. So question आता है how we can collaborate. So मैंने आपको पहले ही बताया कि जितनी भी सर्विसेज वी आर ऑफरिंग थ्रू ACIC, दे आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स हम जितनी भी अपनी ट्रेनिंग्स देंगे, ये जो 3 हेड्स हमने मेंशन किए, आपके पाइथन प्रोग्रामिंग प्लस मशीन लर्निंग डेटा साइंस और रोबोटिक्स के जो आपको माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स हैं, दे विल बी रेगुलर एंड दे विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर आप इस तरह के कुछ सेशंस कराना चाहते हैं, तो वो ट्रेनर्स का आपको अलग से जो अपना करना होगा वो आप पे करेंगे. ACIC MIT मेरठ फाउंडेशन इज नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग फॉर इट्स प्रोग्राम्स फ्रॉम यू. दूसरी बात, जितनी भी मेंटरिंग सेशंस हम करेंगे, whatever the mentors we are mentoring we are giving, they will be free of cost. कोई भी हमारी साथ से तरफ से आपको ये नहीं लगेगा कि we are charging for any services offered. और वो करने के लिए हम what is the thing needed is there is one non-financial MOU, and that will be between your organization and ACIC MIT Meerut Foundation. So the duration we can discuss individually. Initially, I have kept it for life for 3 years, and after this signing this MOU, you can assign the single point of contact and share their contact details with us, so that we can see whatever programs we are going to push in. So we will push in through them. तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक तरह से एक संपर्क सूत्र की तरह काम करेंगे, जो कि जैसे ACIC अगर कोई प्रोग्राम कंडक्ट कराना चाहता है या वो कोई सर्विस ऑफर कर रहा है, कोई इवेंट करा रहा है, तो वो उनके थ्रू सारी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट होगी.
और वो सारे रेगुलर अपडेट शेयर करेंगे। इसके अलावा आई वांट टू मेंशन कि ACIC-MIT मेरठ फाउंडेशन के पास 15 इनोवेशन स्कॉलरशिप्स हैं। We have 15 innovation scholarships of 1 lakh each every year. तो 5 साल के लिए अगले हमारे पास 5 करोड़ का बजट है, जिसमें कि 75 लाख 15 into 5, ये 75 लाख का बजट केवल 75 इनोवेटर्स को हमें देना है, जो कि हमारे इस इकोसिस्टम से निकलेंगे। तो इनको हम जज करेंगे अपने मेंटर बोर्ड से और उनको प्रॉपर मेंटरिंग करेंगे, और जो हम जिस मेंटर्स जो फीडबैक देंगे, दे विल हैव टू डेवलप देयर प्रोडक्ट एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो ये 15 स्कॉलरशिप्स पर ईयर हमारे पास अवेलेबल है। तो इसके लिए भी हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे, कॉल वी विल बी फ्लोटिंग एंड इट विल बी अ नेशनल लेवल कॉल। सो thank you. So now I will open this chat. I'm opening this chat. So if someone has some doubt, so if you have some doubt, you can raise your hand. So I will enable the mic. Okay. पवन कुमार गुप्ता जी, पवन कुमार गुप्ता जी, यू कैन शेयर योर ऑडियो, आप बोल सकते हैं। पवन कुमार गुप्ता जी, आप ओके, आई थिंक उत्कर्ष खरे जी, उत्कर्ष खरे जी, आपका ऑडियो इनेबल्ड है, आप यू कैन आस्क। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Actually, sir, I want to know in Yeah. this, we have received a mail. There was a one notification was there. कि after seeing this webinar, you have to fill a one feedback form also. And I am very much satisfied with your webinar because you have excellent way explained. I am very much satisfied. And I hope I will give to my other teachers also and they will be very satisfied. But one request to you, sir. Yeah. This is a very long webinar for 1 hour. So if is possible, please upload your video on the drive and send me that link on the whether mail or WhatsApp, whatever you will prefer. So I can circulate into all, so they will be inspired with this. Okay. So, sir, I want to mention that this session is live on Facebook of MIT Meerut Foundation, this MIT institution page, and it is shared Okay, on ACIC MIT Meerut Foundation page as well. So all of you can access this session from our social media handles. Okay, sir. Okay, sir. And regarding the feedback form, I have posted in the chat. I just forgot. So That's why actually I want to know. Okay, sir. I will see it. yeah. So this feedback. Now I got it, sir. Yeah. So all of you, you can fill this form. I was waiting eagerly. So okay, thank you so much, sir. Okay. Thank you. So any other question? Not now, sir. Okay. Thank you. So anyone who wants to ask something, you can raise your hand. ये raise hand की facility नीचे दी हुई है. Okay. Yes, sir. Pawan Kumar Gupta ji, now your audio is enabled. Hello, my voice is audible? Yeah, you are audible, sir. Okay. Good evening, everybody. I am Principal Pawan Kumar Gupta from Samli district. Sir, you're audible. Your voice is not clear. My voice is not clear. Yeah. Okay. Okay. I remove just my headphone. So after that, just 1 minute only. That's audible. Yeah, it's far better now. Okay. Firstly, good evening, everyone. I'm Pawan Kumar Gupta, Principal from Samli district.
and already recently our ATL lab is granted, and now lockdown is going on, so our student is also interested in such type of innovation ideas or ICs. So if for the further I required, then definitely I touch with MIET, Definitely, and sir. I hope all of you just give your best for our child, our school. Definitely, sir. Thank you. बिल्कुल हम लोग And पूरा nice session, nice live session, webinar. And only issue is that the timing. Okay, if it will be of 40 to 45 minutes for further, so it's much better. okay, sir. We'll take care. And little bit, yeah, little bit the time, because that if may be possible after 4 or in between 4 to 5. Okay, sir. We'll take care. और Thank you. I would like Yeah. to mention कि if you are able to provide some kind of online platform, if your student are able to get onto some online platform, so we can start a virtual training. So Yeah, I'll try for the next webinar, and just share to the student also. Okay, and if any webinar for the students, so definitely our school student must be participated in that. thank you, sir. Thank you. Okay. Now, Pooja Singh ji, you have a question that how you can get ATL to our school. So on AIM site, I think the criteria for getting ATL is there. So there are different criteria. We'll be surely helping you to draft your application. So after the session, our team will send you a mail regarding this. So if you draft your application, we'll be helping you in drafting that application. If Pooja Singh ji, you can speak now. Your audio is enabled. Pooja ma'am, आपका mic off है. 1 minute, sir. Now I am audible, sir? Yes ma'am, you are audible. Yes, sir. I want to ask, first of all, good evening to all, and it is very good initiative taken by you, and it is much informative for our students also. Sir, I just want to ask, can you arrange a particular webinar for our school? There are many innovative side of our school, but they are not getting a particular platform for them, sir. That is the main problem which we are facing in the small place like Pilakwa. We'll definitely do it. So our team will get in touch with you, and our executive young professional is there, Deepak Mittal. He will connect with you regarding this. And we are simply now through these awareness sessions we are conducting. So we are connecting with people, we are connecting with the communities, we are aggregating the ideas, and we are aggregating the problems. What are the problems in the ecosystem? Because there are functional units and they are facing problems. Like there are functional ATLs also, but they are not functional anymore. They are not active anymore. These are the different problem statements we are collecting in this first phase. And maybe sir, we have, yeah, please sir, please. Yeah, so after getting these things, we are going to solve the problems individually, and we will definitely try to solve your issues. And I can see that you have raised one issue also for getting this ATL. So yes, sir, yes. So since if you are not having this ATL, I have already mentioned that we will help you in drafting the application. Second point is, if you are not having this ATL right now, so yes, sir, the ecosystem we are building, so you can utilize the facilities of other collaborators as well. तो ये इकोसिस्टम इसलिए जरूरी है. व्हाट इज द नीड ऑफ दिस इकोसिस्टम? कि अगर हमारे पास वो चीज नहीं है, व्हाटएवर आई सेड, एक कम्युनिटी, एक कनेक्शन बिल्डिंग जरूरी है.
कभी कभी वो हेल्प हमें पड़ोस से मिल सकती है, बट वी आर थिंकिंग दैट इफ वी आर गोइंग टू बाय then only we can consume it. Okay, so Yes, sir. it should be the main theme, it should be the spirit कि whatever is available in the ecosystem we all can access. Okay, sir. Sir, we have too much fertile brain that our one student in the past, about 2 or 3 years ago, he have a copyright by his name, sir. He's a That's copyright, sir. great, that's great. Yes, sir. That's why that sir we want to take a ATL our school कि हम बच्चों को वो मौका दे सकें, क्योंकि सर पिलखवा से मेरठ भी थोड़ा दूर है, या आपकी ACIC स्कूल तक पहुंच सकती है तो मच बेटर. बिल्कुल मैम, we will devise a method कि कैसे हम इसको करेंगे, है ना? जी. Thank you, sir. Thanks for cooperation, sir. Thank you so much, ma'am. And we have Monica Sharma ji. Monica Sharma ji, your audio is enabled. Good evening, sir. Good evening, ma'am. I'm from the same school of Ms. Pooja Singh, principal of LSD DAV Public School. Yes, ma'am. I sincerely thank you for taking this time out during this time of pandemic and taking us to the path of exploring more in this world at this crucial time. So we have already shortlisted few students, and those students are already part of today's webinar. And I'm hopeful that they would, they would be tinkered by your explanations, and more innovative ideas will be there in our mind. So my same request, sir, if something exclusively can be organized for our school, as students are very keen, but we are, have limited limitations, I would say. And I really appreciate your idea of collaboration with the other school, because I would definitely love that my students get a hands-on learning and understand what exactly Atal Tinkering Lab is before establishing it in my school. So that the funds and the resources are best utilized. Sure, ma'am. So Definitely will do. Yes. Thank you so much, sir, for organizing such webinars. Thank you. Thanks, ma'am. Thank you so much. Dr. Sangeeta Arora, ma'am, your audio is enabled. Yeah. Thank you so much, sir. Good evening, sir, and good evening to everyone who is attending this webinar. I'm Principal Kothari International School, Noida. So we do have ATL lab in our school, and our students are participating in it. But what you say, and partly the question, the request that I want to give it to you, you've already given partly an answer to it. What I want for my student is the problems, because the students are coming from the upper strata. They don't know much of the problems faced by the small units industries, as you have been giving many examples during this webinar. So if we can get these kind of a problem in a nutshell, what are the problems prevailing, and what is the solution that children, when we show it to them, they can think about it. So this is one request. Second is, since we have ATL lab, and we would like to collaborate with any of the school who are interested to work and would like to have our help in the lab, we will do that, because primarily that is the mission of having the ATL lab in the neighborhood school. So we are open to it. So these two things, if you can, sir, help us out in because this is a pandemic time, and physically we are not able to do it. So if we can get those problems in the agriculture, in the industry. Second thing is, if we can get the schools who want to collaborate with us, because we do have ATL lab with us. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. And this is very nice initiative. I wanted to put trust onto the collaborations in this session, and I'm very happy to see that all of you are getting it. See, we have seen a non-ATL lab raising a demand, and someone having the ATL, they are extending their services, and their problem is different, their issues are different. So these are all the problems within the ecosystem, and if we can list down all these problems,
we can see that in the ecosystem we all have solutions. There are complementary solutions available. अगर कोई एक ग्रामीण क्षेत्र में कोई स्कूल है, उसके पास समस्याएं हैं, और शहरी क्षेत्र के स्कूल के पास वो चीजें नहीं है. शहरी क्षेत्र के पास एक अलग चीजें होती हैं. दे आर इनटू, अगर वो बच्चा एक अलग लेवल से आ रहा है, एक अलग स्टेटा से आ रहा है, तो वो उन चीजों को नहीं देख सकता, क्योंकि वो उन चीजों को नहीं जानता है. और वहां पे इश्यूज दूसरे होते हैं. अगर वहां पे हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की बात करें, तो दे विल नॉट बी स्टार्टअप्स. There Yes, will sir. be lesser startups. There will be second, third, fourth और fifth generation businesses. Their challenge will be कि कैसे जो घर का बिजनेस एक चल रहा है, एक इंडस्ट्री लगी हुई है, उसको कैसे ग्रो किया जाए फर्दर, Yes, sir. है ना. एंड अदर चैलेंजेस की अपार्ट फ्रॉम, दे आर कमिंग फ्रॉम बिजनेसमैन बैकग्राउंड. अब वो उन्हें बिजनेस ही करना है, बट दे डोंट वांट टू डू देयर कन्वेंशनल बिजनेस. Yes, sir. हाउ टू सपोर्ट देयर कन्वेंशनल बिजनेस, और वो नए बिजनेस एवेन्यूज में कैसे जाएं. तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन बिजनेसेस को करने के लिए, वो अलग स्टार्टअप बनाने के लिए, ये सारी चीजें चेंज होती जाती हैं. तो जी सर. इसलिए ये इकोसिस्टम क्रिएट करना जरूरी है. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया. And we will surely release the problem statements. We will hold the ideathons first, and then we will hold the hackathons to address those issues, and they will be on grassroots level issues. Okay, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Looking forward to it, sir. Thank you so much, ma'am. Now we have Anjana Sharma, ma'am. I'm just enabling your audio. Anjana Sharma, ma'am, you can talk now. Am I audible? Yes, ma'am, you are. You are. हाँ सर, मैं LSDDAV पब्लिक स्कूल पिलखवा से बोल रही हूँ सर. Yes, सर ma'am. माय क्वेश्चन इज दिस कि हमारे स्कूल के आसपास जो लॉगिंग, वाटर लॉगिंग हो जाती है, एक्चुअली जो धोबी घाट है वहां पर, तो वो सारा पानी अपने छोड़ते रहते हैं, तो वो झोड़ टाइप जो बन जाता है ना, उस टाइप से है. Yes, तो ma'am. मेरा शुरू से यही रहा है कि इस वाटर का जो वेस्टेज हो रहा है, इसको हम यूज कर सके या ना कर सके, तो इस पानी को हम यूटिलाइज कर सके. ऐसा कोई यदि हम प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं, आपके तरफ से हमें हेल्प हो जाएगी? मतलब इस तरह की लैब्स हमें मिल जाएंगी, या इस तरह के फंड्स, या ये वाटर रिसाइकल हो जाए, पूरे शहर के काम आए हमारे. मैं मतलब इस डायरेक्शन में मेरा बहुत इंटरेस्ट है करने के लिए. तो विल दिस आइडिया एग्जीक्यूटेड? डेफिनेटली मैम, ये इशू है, और आपको भी एक हमें टिंकरिंग करनी पड़ेगी बच्चों के साथ, that what is the probable solution, और there are standard solutions as well. तो सबसे पहले हम टिंकरिंग को इसमें प्राथमिकता देंगे. प्राइमरली हम पहले टिंकरिंग को प्रमोट करेंगे, देन विल मूव ऑन टू द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और वो बच्चे ही करेंगे. ओके सर. सर जैसे हमें ग्रास रूट लेवल पर चाहिए, जैसे हमें जरूरत पड़ेगी कि वाटर की हम जो भी TDS है वो चेक करें, वो सारी अवेलेबिलिटी हमें हो पाएगी? बिल्कुल मैम, बिल्कुल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. थैंक यू वेरी मच सर. सर एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल. सर हमारा जो पिलखवा है वो टेक्सटाइल के नाम से जाना जाता है, मतलब यहाँ की चादरें बहुत फेमस होती हैं, लेकिन हमारा यहाँ का जो बिजनेस है, बहुत सारे बच्चे हमारे इसी बिजनेस को बिलोंग करते हैं. तो ये टेक्सटाइल में मतलब बहुत ऊपर तक यदि हम लाना चाहें, तो हमारे को वो वाली हेल्प भी हो जाएगी इन लैब से? मतलब हम अपने बिजनेसमैन को या हमारे स्टूडेंट्स को फेवर करें कि वो अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा पाए, तो इस तरह की हेल्प हो जाएंगी? मैम बिल्कुल हो जाएगी. दैट हमारे इकोसिस्टम में है. अटल कम्युनिटी जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, इसके अलावा जो बड़े इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं और जो ग्रांट्स आ सकती हैं सीड फंड के थ्रू, दैट विल ऑल सारी इंफॉर्मेशन वी विल प्रोवाइड टू यू, and we will connect you with the proper connects. Thank you sir. Thank you so much. और कोई I think no one has left with any issues, no
hands are raised now. So one more. Okay. So it's already 7:15, and there is two more requests. One is from Shivangi. So I'm just enabling you. Yes, Shivangi ma'am, now you can talk. Good evening, sir. Thank you for such a lively session and very informative also. I Yeah. just wanted to ask that for the webinar regarding the machine learning and data sciences, what level of math will be required? Till which standard we have to prepare the maths for that? So for that normal class 10th level or 9th level mathematics, 9 to 10th level mathematics, that is sufficient. Rest if it is needed, so our trainers will teach you. Thank you so much, sir. Okay, thank you ma'am. We have one more raised hand from Mr. Kush. Mr. Kush, your audio is enabled. You can unmute yourself. Good evening, sir. Good evening. So first of all, I want to say that this is really very good initiative and a nice webinar. Sir, actually, I want to ask that I have some ideas, some related to entrepreneurship or my further experiences. Yeah. So how can I promote them and how will ACIC help us to make them further proceeds? Okay. So Kush, you can write back to me regarding that you have some ideas and you want to have it. So we have our mentor panel available. So first I'll try to connect you with the local mentor, which is that don't go on the name that local mentor that we use for the ingenious mentors we have. So first thing will be that they will help you out to draft your ideation, your idea, that is ideation. So what we'll do, we will give it a proper shape, and then we'll try to assess that at what technology readiness level, at what TRL level you are there, and if something can be done on primary level, we'll check it out, and then we'll try to help you out further. So you can write back to me, or you can write back as a response, as a revert option in the mail you have got through this for the meeting link you got, the info at ACICM this meerut.org. Okay. So I think there are no other questions. So I hope that everyone has filled up the feedback form. I'm again pasting it here if someone has missed. And please do fill it. Your participation certificates will be distributed based on your responses. And please rate the responses honestly. And now I am saying goodbye to every one of you, and I hope that in our future events all the participants will be there and will get better participation. Today we crossed 100. Thank you so much.